Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is lesson number 4, animals, food and feeding habits. So what are the food habits of animals? In this chapter we are going to learn about the food habits. देखो हम humans में भी सबका अलग अलग food habits होते हैं, isn't it? Somebody likes to have milk and bread in breakfast, somebody likes to have idli and dosa, and someone likes to have some fruits. So everybody have their own food habits. So in this chapter we are now going to learn about the food, what type of food animals used to eat and what are their feeding means eating habits क्या है, इनके बारे में हम in detail में learn करेंगे. Because children, up to class 2 what you have learned about animals is what are animals, and how many types of animals are there, what are wild animals, what are domestic animals, and what are the uses of animals for us, what are the things that we get from animals. You came to know about all these things. So now in class 3 we are just going to learn about the types of food being eaten by the animals and what are their feeding habits. So let us see the learning plan. At the end of this chapter learners will be able to, means at the end जैसा पूरा चैप्टर हमने कर लिया तो आपको लास्ट में लर्नर मीन्स दोज हु आर लर्निंग, दे विल बी एबल टू distinguish. See the word, children, DISTINGUISH, wish. So distinguish means difference बताना, differentiation of animals on the basis of their food habits. मतलब food habits के basis पे animals को अलग अलग groups में divide किया है. So they can know the differentiation between the animals according to their food habits. So this will be the first point which we can learn in this chapter. The next one, explain the feeding habits of animals. How animals will be fed, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छा से explain कर सकते हो. Describe food chain, आपको food chain क्या है, ये क्या है, इसके बारे में आप learn कर सकते हो. And describe how to protect and take care of animals, हमको animals को कैसा protect करनी है, उनकी care कैसे करनी है, इन सब के बारे में. So children, we are going to learn so many new topics about animals, isn't it? It is a very interesting chapter. Let us go through this and let us see the think about it. We have to think about something. Let us see what it is. Are animal friends? Yes, what are animals? Animals are also our friends, just like plants are our green friends. Animals are also our friends. Have you seen a cow grazing on grass? हैव यू सीन अ काउ, कभी आपने कोई ऐसी काउ को देखा, कैसी काउ को, ग्रेजिंग ऑन ग्रास. अंडरलाइन द वर्ड ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मीन्स टू फीड, मतलब जैसा ग्रास जैसा चीज़ें जब खाते हैं ना उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग. टू फीड ऑन ग्रास मतलब काउ क्या खाते हैं, काउ, बफेलोस, ये सब. व्हाट दे यूज टू ईट ग्रास. सो हैव यू एवर सीन, आपने कभी देखा क्या ऐसा. दिस इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस. ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है. हैव यू सीन अ काउ ग्रेजिंग ऑन ग्रास, ग्रास खाते हुए कभी देखा क्या. हैव यू सीन अ रैबिट क्रंचिंग कैरेट्स. इफ़ यू हैव observed eating carrot, how the carrot used to eat, छोटी छोटी टुकड़े करते हुए कचक कचक साउंड करते हुए खाते हैं. दैट इज़ नथिंग बट द आवाज़ जो वो साउंड करते हैं ना छोटा सा, उसको हम क्रंचिंग बोलते हैं. छोटी छोटी टुकड़े करते हुए आवाज़ करते हुए खाना हल्का सा. हैव यू सीन अ रैबिट क्रंचिंग कैरेट्स. हैव यू एवर सीन रैबिट ईटिंग अ कैरेट. हैव यू सीन अ टाइगर ईटिंग मीट. ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल है हमको, है ना. किसी ने लाइव में टाइगर को टीवी में पिक्चर में, उसके अलावा आपने लाइव में कभी देखा क्या कोई टाइगर मीट को कैसा टीयर करके फ्लैश को खाते हैं. हैव यू सीन अ फ्रॉग ईटिंग एन इंसेक्ट. कभी देखा हो तो देखना फ्रॉग कैसा इंसेक्ट को खाते हैं. फ्रॉग अलग तरीके से खाते हैं, उनकी लॉन्ग टंग होता है, जिस टंग को बाहर करेगी इंसेक्ट को पकड़ेगी और खाते हैं. Different animals have different eating styles. Yes, all animals are different. All are of a single group of animal kingdom, but their eating habits are different. Just like humans, we are all humans, isn't it, children? But all of us have different eating styles. In the same way, all the animals too have so many different eating styles. From where do the animals get food? So let us know about this. From where we are getting food? We are getting food from
all the food sources, but from where the food sources are also being bought to us, ये भी कहाँ से आ रहे हमें. सो इन द सेम वे फ्रॉम वेयर डू द एनिमल्स गेट फूड, एनिमल्स को फूड कौन सप्लाई कर रहे हैं. लेट अस नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो मूविंग अहेड इनटू द चैप्टर, सी द फर्स्ट पैराग्राफ. ह्यूज एलिफेंट्स, सी द वर्ड ह्यूज, ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ह्यूज एलिफेंट्स, एलिफेंट्स कैसे होते हैं, वेरी बिग, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द वर्ड ह्यूज हियर. स्मॉल एंट्स, बहुत छोटे छोटे एंट्स. फियर्स लाइन्स, फियर्स लाइन्स, फियर्स मीन्स फ्राइटनिंग, डरावना, डरावना वाले लाइन्स को देख के किसी का प्यार मतलब वो प्यारा प्यारा लगता है क्या, नहीं लगता है ना, बहुत डरावना लगता है. लाइन की जो साउंड रोरिंग सुनेंगे तो आपको कैसा लगता है, बहुत डरावना लगता है. टेम लैम्प्स, टेम मीन्स चिल्ड्रन, TAME, टेम, द वर्ड टेम मीन्स डोमेस्टिक, एक तरह से पालतू वाली लैम्प्स, मतलब शीप की जो बेबी होता है वो लैम्प है. शीप वगैरह भी फार्मर्स रखते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, ब्रिंग एंड बॉट अप करते हैं. प्लेफुल रैबिट्स, रैबिट्स को देखते देखते हर किसी को भी खेलने के मन हो जाते हैं, कैसा कूदते रहते हैं ना. रैबिट्स ऑलवेज यूज्ड टू हॉप लाइक दिस एंड दैट, दैट्स व्हाई वी हियर सेड दैट प्लेफुल रैबिट्स. फास्ट लेपर्ड्स, लेपर्ड्स बहुत फास्टली भागते हैं, छलांग में मतलब बहुत जल्दी जल्दी भागते जाते हैं. स्लो स्नेल, स्नेल इज़ एन एनिमल, वो ऐसा गोल एक ही राउंड में होके अपनी बॉडी को अंदर ले लेगी और बहुत धीरे धीरे चलती है. कलरफुल पैरट्स, यस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ टू सी अ पैरट, है ना. ग्रीन कलर फेदर्स, ग्रीन बॉडी, उसके साथ डार्क रेड कलर नोज़ के साथ, कितना सुंदर लगते हैं पैरट्स, है ना. डेलिकेट बटरफ्लाइज, हाउ द बटरफ्लाइज आर डिस्क्राइब्ड. डेलिकेट, DELICAT, डेलिकेट मीन्स वेरी सॉफ्ट, इजी टू डैमेज. आपने कभी बटरफ्लाई को टच किया हुआ हो तो कई बार वो आपने थोड़ा जोर से पकड़ लिया तो वो बटरफ्लाई की जो विंग्स है उनकी जो फ्लफ़ीपन आप फील कर सकते हो और उसके कलर्स भी आपके हाथ में आने के चांसेस रहता है. सो हाउ द बटरफ्लाइज लुक्स, दे आर वेरी डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट, मतलब ऐसा पकड़ते हुए डैमेज हो जाए ऐसी होते हैं उनकी विंग्स की जो स्किन है. एंड ब्लैक एंड येलो बीज आर ऑल एनिमल्स, ये सब क्या है, ऑल दीज आर एनिमल्स. आपने ब्लैक भी देखा होगा, येलो भी देखा होगा, बग्स देखे होंगे, इंसेक्ट्स देखे होंगे. सो ऑल ऑफ दीज एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या है, ऑल दीज आर एनिमल्स. ये लैम्प्स हो, लेपर्ड्स हो, जितना बड़ा एलिफेंट भी एक एनिमल है, इतनी छोटी सी एंट भी एनिमल है. कलरफुल पैरट जो सुंदर दिखता है, इट इज़ एन एनिमल. एंड डेलिकेट सॉफ्ट बटरफ्लाइज, दे आर ऑल्सो एनिमल्स. सो एवरीथिंग, ऑल दीज आर विच आर डिस्क्राइब्ड हियर आर ऑल एनिमल्स. दे ऑल बिलोंग टू द एनिमल किंगडम. सो जैसा अभी हम सब क्या बोला जाता है, वी आर ऑल ह्यूमन्स. इन द सेम वे ऑल ऑफ दिस एनिमल्स बिलोंग टू एन एनिमल किंगडम. ये सब एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, मीन्स दे आर द एनिमल्स ऑल बिलोंग टू देयर ओन किंगडम, दैट इज एनिमल किंगडम. All animals need food, isn't it children? Because animals are all living things. ये हमें पता है, because they used to grow in size, they can breathe, they can reproduce. So obviously we can say that animals are living things. So living things के लिए क्या compulsory है? We came to know that too. What are compulsory for living things? They need food, air and water to live. So animals को भी food चाहिए. तो अपनी जैसे animals को जंगल में बहुत अच्छा सा forest है, उनके बहुत बड़े बड़े घर है और किचन भी सजा हुआ रहेगी और उसकी मम्मा हमेशा अपनी मम्मा जैसा किचन में 3 टाइम ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच बनाते रहते हैं. Have you ever saw that? Have you ever listened about this? No, na? So let us know how these animals and from where these animals get food. All big and small animals need food to live, isn't it? जैसा घर पे कोई छोटा बेबी हो या घर पे ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन हो, एडल्ट हो, चाइल्ड हो, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस डेली नीड फूड, isn't it children? हम सबको भी घर पे कोई भी छोटा बेबी भी हो तो विद इन एवरी 1 आवर या हाफ एन आवर टाइम स्पेन में उसको कुछ लिक्विड्स या सॉलिड कुछ तो खिलाना पड़ता है ताकि बेबी जल्दी ग्रो हो सके, उसको एनर्जी मिल सके, है ना. इन द सेम वे एडल्ट्स वी ऑल्सो यूज टू टेक फूड, चिल्ड्रन ऑल्सो यूज टू टेक फूड 5 to 6 times. In the same way who our elder
elder persons are there in the home, they too also take food. Every living being needs food to live. So all begin. एलिफेंट तो बहुत बड़ा है, क्या ज़रूरत है उसमें, वैसी ताकत है, खाना नहीं खाएगी तो क्या होगा, ऐसा चलेगा क्या? नो, इवन इट इज़ अ ह्यूज एनिमल, इट टू नीड्स फूड, उसकी अपनी एनर्जी के लिए। अरे चींटी तो इतनी सी छोटी सी चींटी है, इसी करो तो मर जाती है, उसको क्या फूड की ज़रूरत है? नो, इन ऑर्डर टू लिव इट इज़ ऑल्सो एन एनिमल एंड इट टू नीड्स फूड. सो ऑल बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, एवरी एनिमल नीड फूड टू लिव, उनको फूड चाहिए होता है. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो. वाई? इन ऑर्डर टू लिव दे नीड फूड, इन ऑर्डर टू ग्रो डेली कुछ खाएंगे, एनर्जी, in order they if they eat something they will get energy and they will grow. So how all this will happen? By eating food. Animals need food to grow, to get energy to do work. Yes, they have to do work too. ऐसा नहीं है अपनी घर पे जब अपन छोटे हैं अपनी मम्मी पापा रख लिया अपन को और अच्छा से अपन को खाना सब टाइमली सब आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है. बट एनिमल्स की क्या, बर्ड्स की, एनिमल्स की मदर्स जो भी है वो थोड़ी दिन फूड ला के जब तक वो वो अपने आप फ्लाई नहीं कर पाएंगे, बर्ड्स और एनिमल्स जब तक अपने आप चल नहीं पाएंगे तब तक ही मदर टेक करते हैं. आफ्टर दैट दे विल गो टू हंट देयर ओन फूड. दे यूज टू गो आउट एंड दे ब्रिंग देयर ओन फूड. अपनी फूड खुद ही लाते हैं वो. सो इन ऑर्डर टू, तो ये वर्क है एनिमल्स का. आप ये सोच सो मैम व्हाट वर्क डू एनिमल्स डू? एनिमल्स कौन सी इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे हैं या क्या काम करते रहते हैं? नो, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट. वो सब क्या अपना काम खुद ही करेंगे, अपना फूड खुद ही गैदर करेंगे. That's why they also have so many work to do and they need some energy to do all these things and to stay healthy and strong. Even the main important thing is eating food and doing exercise, means doing some work makes a living being टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ये सब करने से क्या कोई भी लिविंग थिंग हेल्दी भी रहेंगे और इवन दे विल बिकम स्ट्रॉन्ग ओल्ड इनफ टू हैंडल एनीथिंग. सो चिल्ड्रन, वी केम टू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, इजंट इट? आप खुद भी अगर एक दिन पूरा नहीं खाने के बिना रह के देखिए आपको कितना वीकनेस, टायर्डनेस, कितना ज़्यादा आप फील कर सकते हो. इन द सेम वे ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड. वाई एनिमल्स नीड फूड? से along with me children, to live, to grow, to get energy. For what? To do work. Why? In order to stay healthy and strong. So ये लाइन में बहुत अच्छा मीनिंग है जिससे कि एनिमल्स को फूड खाने से वो जी पाएंगे. अदर देन दैट दे नीड फूड टू ग्रो, दे वांट टू ग्रो एंड आफ्टर दैट दे नीड सम एनर्जी टू डू वर्क. फॉर व्हाट? दे डू वर्क so that they can stay healthy and strong. Now, types of animals. So let us now know about the types of animals. We already heard about domestic and wild animals. आपको इतना ही पता है. Now, animals are divided into 3 groups. Yes, 3 more groups of animals are there. What they are? According to the food they eat, on the basis of their feeding habit. According to their food मतलब इसके अनुसार, उनकी फूड खाना खाने की फीडिंग हैबिट्स के अनुसार एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरीज में वी हैव डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट. एनिमल्स हैविंग सिमिलर फीचर्स आर ग्रुप टुगेदर. सो जो एनिमल्स को एक जैसा ईटिंग हैबिट्स है, सिमिलर फीचर्स मतलब जो एक जैसा स्टाइल फॉलो करते हैं खाने में, they are grouped together. We have grouped them in another way. So on the basis of their eating habits, we have divided animals into 3 groups. Let us see what they are. The first one is herbivores. Herbi, herbivores, wars. Herbivores means animals that eat plants. कुछ animals है जो only plants ही खाते हैं, so they are known as herbivores. Carnivores, C-A-R-N-I, carnivores, ors. Carnivores means animals that eat flesh of another animals. So जो animals दूसरे animals की फ्लैश मीन्स मांस जो बोलते हो आप, है ना, वो जो खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं. एंड ओमनीवोर्स, OMNI, ओमनीवोर्स मीन्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स. सो जो एनिमल्स बोथ प्लांट्स भी खाते हैं एंड फ्लैश भी खाते हैं. कुछ एनिमल्स हैं जो ओनली प्लांट्स ईट करेंगे, दे आर नोन एज
Yes, children, say they are known as herbivores, and the animals that only eat flesh are known as carnivores. But the animals, those who eat both plants and flesh of other animals, are known as omnivores. So children, just like humans में भी अपनी feeding habit पे depend करके humans को भी हम we have divided them just like vegetarians, those who eat only fruits and vegetables, and non-vegetarians, those who eat meat, fish and all these, they are all known as they eat along with vegetables and fruits. They also used to take meat, chicken, mutton, ये सब जो खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन बोला गया है. एंड अनदर मोर ग्रुप ऑफ another more group is there, they are vegans. ये आपने ऑलरेडी आई थिंक यू कुड हैव डन इन योर क्लास 2. वेगन्स कौन होते हैं? जो बिल्कुल फूड प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं, नॉट ओनली जिंजर गार्लिक ये सब नहीं, वो फूड प्रोडक्ट्स नहीं, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं. मिल्क मतलब एनिमल से आया हुआ कोई भी चीज़ वो बिल्कुल खाते नहीं हैं. जैसा वेजिटेरियंस दे वोंट ईट मीट बट दे यूज टू टेक मिल्क डेली, मिल्क प्रोडक्ट्स भी खाते हैं. बट वेगन्स दे वोंट ईट ऑल दीज टू. सो इन द सेम वे द एनिमल्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स. उनकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर बेस करके उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया. दे आर हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स.